गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्स और लिंकेज इन बिटवीन एटम्स, molecules or ions known as chemical bonding. Known as chemical bonding. The attractive force or linkage in between atoms, molecules or ions which bind together, एक दूसरे को बांध के रखता है, इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड अगर हम देखें, एटम के बीच अगर होगा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगा, इसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में जो होगा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड हुआ दैट इज इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। ये इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है। एम आई क्लियर अबाउट इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन? Attractive force or linkage in between atoms known as interatomic attraction, interatomic bond, covalent bond. Second, electrovalent or ionic bond in between ions. Inter-ionic attraction. आयन के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग ions, cations or anions known as ionic bond or electrovalent bond. Third, metallic bond. Metallic bonds in between positive charged metal kernels, positively charged metal kernels between electron, यानी in between kernels and electrons, in between kernels and electrons. अब मोलेकुल के बीच भी अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ attraction in between
molecules. So there are four types of linkage, four types of attracting forces: interatomic force of attraction, interionic force of attraction, metallic force of attraction और intermolecular force of attraction. अब हम इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं, उसके टाइप्स को। Intermolecular force of attraction. Forces of attraction. Intermolecular forces of attraction categorized in three parts. First, van der Waals forces. Van der Waals forces. Second, ion dipole interaction. Ion dipole interaction. Ion dipole interaction. Van der Waals forces, ion dipole interaction, ion induced dipole interaction. Ion induced dipole interaction और हाइड्रोजन बॉन्ड। Intermolecular forces, force of attraction classified into van der Waals forces, ion dipole interaction, ion induced dipole interaction and hydrogen bonding. Van der Waals forces also classified into dispersion forces or London forces. Dispersion or London forces in between two non-polar, in between two non-polar molecules. अब नॉन पोलर मोलेकुल्स हम पढ़ेंगे आगे, जब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो उस समय नॉन पोलर मोलेकुल्स पढ़ेंगे। अभी आप देखिए डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस जो है वो दो नॉन पोलर मोलेकुल्स के बीच एग्जिस्ट करता है। यानी नॉन पोलर का मतलब हो गया जिस पर कोई चार्ज
पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो। सेकेंड, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल interaction. Dipole interaction in between polar molecules, दो पोलर मोलेकुल्स के बीच में जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन in between polar and non-polar molecules. यानी van der Waals forces, in van der Waals forces there are three types: dispersion forces or London forces in between two non-polar molecules. Dipole interaction in between polar molecules and dipole-induced dipole interaction in between polar and non-polar molecules. देखते हैं हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन इन बिटवीन आयनिक एंड पोलर मोलेकुल्स। आयनिक मोलेकुल्स जिसमें आयनिक बॉन्ड है, ऐसा मोलेकुल और उसके कांटेक्ट में आने वाला पोलर मोलेकुल, ये इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप करता है। अब है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इन बिटवीन आयनिक कंपाउंड, in between ionic compound and non-polar molecules. Hydrogen bonding, bond between hydrogen and fluorine or oxygen or हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चैप्टर में वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ना है। इंटर एटॉमिक, इंटर मोलेकुलर, इंटर आयनिक, मेटालिक बॉन्ड, उसका एक टाइप्स, उसका एक ब्रीफ हम बताए आपको। अब हम केमिकल बॉन्ड इनिशियल से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन 2, यानी इसको हम बोलेंगे डुप्लेट। प्रत्येक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है टू अचीव, यानी कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखें हम अगर, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। ये दो चीज है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टू अचीव नियरेस्ट noble gas configuration, to achieve noble gas configuration, and दूसरी बात to obtain stability। अब ये जो काम है ये कैसे करेगा? बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय gaining of electrons or by sharing of electrons। यानी कोई भी एलिमेंट अपना नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी by losing of electron, by gaining of electron or by sharing of electrons। तो हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हीलियम 2 है, डुप्लेट बनाएगा। इसके नजदीक का जो एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये डुप्लेट बनाएगा। नियॉन 2 8 ऑक्टेट हुआ, आर्गन 2 8 8, क्रिप्टन 2 8 18 8, xenon 2 8 18 18 8, radon 86 2 8 18 32 18 8। यानी देखिए नियॉन और उसके बाद का जो एलिमेंट है उसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका जो नियरेस्ट होगा वो ऑक्टेट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहली बात समझ में आई कि केमिकल बॉन्ड का कॉज क्या है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। नियॉन इसके पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में।
हीलियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रख के हम लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर डालते हैं, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको सिंबल के चारों तरफ लिखते हैं। ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन of some important elements. कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको याद रखना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम 1। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर्स, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पेरिफेरी में, एक। तो किसी का अगर लिखेंगे तो Na मान लीजिए लिखना है एक डॉट से, या मान लीजिए K लिखना है एक क्रॉस से। तो डॉट से या क्रॉस से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लीविस डॉट जो है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लिख सकते हैं Mg, 2 डॉट डाल दीजिए या 2 क्रॉस डाल दीजिए। अब है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इतना ही रखिए। इसमें 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 2 पॉसिबिलिटीज है, हम 3 डॉट 3 तरफ भी डाल सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डॉट, ये दोनों हमको याद रखना चाहिए। अब है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन, सिलिकॉन, ये 2 हमको इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, हम चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन रखें। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम
दो तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डालें और तीन तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन डालें। फॉस्फोरस मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पर 2 डाल दिए, एक डाल दिए, ऐसा भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज में आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इस तरह से भी रख सकते हैं, सल्फर है तो ऐसा भी कर सकते हैं। दो तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन डालें और दो तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन डालें। अब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 7 है। तो फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो इस तरह से अब एक जेनन भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टन और जेनन, ये दो कंपाउंड बनाता है। तो जेनन है अगर तो ये सर्टेन एलिमेंट्स है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उससे रिलेटेड उसका डॉट स्ट्रक्चर है। कुछ एलिमेंट्स है जिसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन, सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 5, ऑक्सीजन, सल्फर 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन 7 एंड क्रिप्टन, जेनन 8। यानी ये हम लीविस डॉट में जो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाते हैं। सिग्निफिकेंट हो गया इस लीविस डॉट स्ट्रक्चर का कि यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी में अगर हम आयंस का देखें, अब ये आयंस के केस में अगर हम देखें तो जैसे Na+ है तो सीधे लिख देंगे Na+, K+, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ Na+, K+। Mg2+, Ca2+, B3+, Al3+। लेकिन ये तो शेयरिंग करता है, ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऊपर जो हमने देखा सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, कार्बन, सिलिकॉन ये शेयर करने का टेंडेंसी। अब यहाँ नीचे आए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर यहाँ पर हम 3- करें, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर 3- इस तरह से हमको रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन है, अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, इसमें 2- डालना पड़ेगा और F- ये
इस पर -1 चार्ज डेवलप होगा। तो नाइट्रोजन पर 3-, ऑक्सीजन पर 2-, फ्लोरीन पर -1 चार्ज होगा। तो आज हम लोग जो पढ़े केमिकल बॉन्डिंग का टाइप्स देखे, इंटर एटॉमिक, इंटरमोलेकुलर, इंटर आयनिक, मेटेलिक, इस टाइप्स को फिर हम डिटेल्स करेंगे। दो चीज़ आज हम जो देखे कि नोबल गैस कन्फिगरेशन हमको याद रखना चाहिए, जो भी नियरेस्ट जो भी एलिमेंट्स है उसकी टेंडेंसी भी यही होती है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन को हम अचीव करें और स्टेबिलिटी ऑब्टेन करें, इसलिए उसको याद रखना है। दूसरी बात, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको याद रखना है, सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और उसके लीविस डॉट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।